Hello everyone, good morning. Welcome me back again in the topic application of trigonometry. Maybe this is the last session of the application of trigonometry. I hope you all have understood all the type of question, rather just one type of question, and different examples based on that, right? And now we are moving ahead for next part of the session where we have I have corrected all difficult sort of questions, maybe from the textbook, maybe from extra books, right? So this is one of the questions which you can see here. This we had done as the last question of your previous session, but again I have taken so that you understand it betterly. A straight highway leads to a foot of a tower. So there is a tower and there is highway. A man standing at the top of the tower, here is the observer at point A, observes the car at an angle of elevation, angle of depression, sorry, 30 degree. Basically this is 30 degree, okay, at point P, which is approaching the foot of the tower. It is moving towards it with uniform speed. After 6 seconds, it was found to be 60 degree. So at a Q point, and this time it is taken 6 seconds, and the depression of the car was found to be 60 degree. So this will be 60, basically this is 60 degree, okay. And you are expected to find how much time it will take from Q to B. That means what I have to find time for QB. This is what I have to find out. So it's very clear, no distance is given and no distance is asked to find out. In such question, you have to consider the velocity. Let me tell you, you have to consider the simple thing, that is velocity. The velocity of the car, or the speed of the car is V, or let B will say V meter per second. So your distance QP will be equal to 6 into V, right? This is 6V. I hope you understood that. The time into speed is going to be my distance covered. Am I correct? So that's the distance. Now, what I'm going to do, I will be solving this question as if I'm considering this is the distance as a clear answer. So is this the right side of a right angle triangle? Of course, no. Then we have to choose some variable as BQ. I'll call it as X. And I will work for X. So the common side is AB, which is there in both the triangles. So I can use here tan of 60 is equals to AB upon X. X root 3 is equals to AB. Tan 30, which is AB upon X plus 6V. So X plus 6V upon root 3 will be AB. This is what my two equations are. If I compare or equate these two equations, I will get x root 3 is equals to x plus 6v upon root 3, which might give me 3x is equals to x plus 6v, which will be 2x is equals to 6v, and x will be equal to 3v. This is the answer. Of course, I am asked for QB itself, so QB x value is more than sufficient. But what is this? This is the distance. I am asked for the time. So time is equals to what? Time is equals to distance upon speed. So therefore, time for QB is equals to distance 3v upon speed v, the velocity or speed. We get cancelled. I get 3 seconds. So how much time it will take from Q to B to the car required for the car? It is nothing but 3 seconds. That's it. So very simple. So very simple. Okay. So two questions of this category we have taken so that you understand the concept of that velocity, this velocity properly. Next question. Let's move ahead. Now this also we have taken already. Let's see. This is a question. An aeroplane vertically above the straight horizontal road. The angle of depression of two consecutive kilometer stone on the opposite side of the aeroplane are observed. So here is the road, here is the aeroplane vertically above the straight highway, here is the 2 kilometer stones and the opposite side, not on the same side.
Now that is very very important. So the angle of depression to these two aeroplanes, these 2 kilometer stones were 60 degree and 30 degree. This is the height of the aeroplane. 2 consecutive kilometer stone, that means ये जो distance है, this distance is 1 kilometer. This already we have understood in our previous examples. Of course, if this is 60, this will be 60, and if that is 30, this will be 30. Remember, if it is given the angle of depression, we as it is take angle of elevation itself, like angle of elevation. But for drawing, for writing, you have to go for that 60 and 30 at the top. Okay, so please remember, keep in mind that whatever depression is given or elevation is given, you have to properly mention that there in the diagram. That means if you don't write this and directly this diagram is there, whereas it is asked for angle of depression, your diagram is wrong. You might get directly 0 mark here. So it's better that we go for angle of depression stating above the observer. Straight line of horizontal line you will draw where the observer is, and from there you will mention the angle of depression. And of course, while using, you can use the base angles. ठीक है? Anyway, my question to you is this 1 kilometer is the side of a right angle triangle? Of course not. तो ये x होगा, imagine. दूसरा BQ भी x ले सकते हैं, और ये होगा 1 minus x. ठीक है? एंड अभी विल कंटिन्यू. सो अपना वाला tan of 60 AB upon x, तो x √3 इज इक्वल्स टू AB. यहाँ पे अगर 45 होता तो क्वेश्चन वुड हैव बीन बिट डिफिकल्ट. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब 45 आता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है. ऐसे वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. ओके, tan of 30 इज अगेन AB अपॉन BQ, मतलब 1 minus x. तो इट विल बी 1 minus x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB. यहाँ पे एक और एक गलती होती है, x minus 1 लेते हैं, तो बहुत बड़ी गलती है. बिल्कुल भी ऐसे मिस्टेक मत करना. 1 minus x है वो. ओके, नेक्स्ट इज इक्वेटिंग इट. आई गेट 3x इज इक्वल्स टू 1 minus x. 4x इज इक्वल्स टू 1 है. तो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू 1/4. तो x आ गया 1/4. What I am expected to find out AB है ना. क्या पूछा है? Show that the aeroplane above the road is the height of aeroplane above the road is height of, मतलब AB फाइंड करना है. What is AB is equals to x √3 which is 1/4 √3, मतलब √3/4 किलोमीटर. That's it. Answer is done. जो हमें प्रूव करने के लिए बोला है. So very simple, isn't it? ये बहुत सिंपल था. मुझे बस एक्सप्लेन करना था डायग्राम कैसे होता है ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बेसिकली वाई आई टुक दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट ये अंडरस्टैंड करने के लिए. ये डायग्राम आप लोग अननेसेसरी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो एट द सेम साइड 60 एंड देन 30, जैसे हमने इससे पहले किया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ठीक से समझना. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन एक जैसे है. 3 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, तीनों के तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक आ गया मतलब आपको सारे आ जाएंगे. ओके, तो ये लगने के लिए बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल. ओके, डोंट वरी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेकिन हाँ, याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो मार्क करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन के हमने 3 अलग अलग टाइप 3 अलग अलग वेरिएशन लिए हुए हैं. आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम पॉइंट ए, ये टॉवर है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी सिचुएटेड in the same line at a distance of P and Q respectively from the foot of the tower are 30 and 60. तो ये रहा 30 वाला A है, ये B है. at a distance P, तो ये P डिस्टेंस है and Q डिस्टेंस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती करते हैं, BA को Q लिखते हैं, तो वैसे नहीं है, ये पूरा QB फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम टॉवर है. ठीक है, तो P and Q एट डिस्टेंस P and Q, उल्टा भी हो सकता है मे बी, मतलब ये P है और ये Q है. ओके, फाइन, रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसलिए मैंने ए का डिस्टेंस P लिया, B का डिस्टेंस Q लिया. एंड यू हैव टू प्रूव हाइट ऑफ द टॉवर इज रूट ऑफ PQ, मतलब PQ इज द रूट ऑफ PQ. ओके, ये डिस्टेंस हमें प्रूव करना है, PQ फाइंड करना है, बस दैट्स इट. कितना दिया? ये 60 होगा,
ये 30 होगा। तो बताओ क्या करेंगे, अपना वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट tan ऑफ 30। अभी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है क्या, दिया है, दोनों है, जैसे P भी है Q भी है, तो आपको कोई भी वेरिएबल लेने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, P एंड Q दिया है ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव तो PQ में ही करना है ना, तो इसका मतलब वही वैल्यू लेनी है मुझे, दैट्स इट। तो tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन Q एंड tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन P, स्मॉल p, √3 PQ अपॉन Q एंड 1 अपॉन √3 PQ अपॉन P, ठीक है। PQ इज इक्वल्स टू, हम लोग नॉर्मली जो करते हैं, तो Q√3 इज इक्वल्स टू PQ एंड P/√3 इज इक्वल्स टू PQ। ये मेरे दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग करते हैं गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन में आपने इक्वेट किया तो आंसर कभी नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपरली याद रखो, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा, इसमें इक्वेट वगैरह कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, जो करना है वो बहुत सिंपल है। ओके, देखो कोई भी दो इक्वेशन अगर मेरे पास है तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कि दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब Q√3 इंटू P/√3 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ओके, ये √3 है, √3 गेट कैंसिल, क्या आएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इम्प्लाइज व्हाट, रूट ऑफ PQ इज इक्वल टू PQ। इसको याद रखो बस, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन को, ये जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लो, मार्क करके रखो आपके इसमें, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी वही कैटेगरी है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जैसे दो पॉइंट है, ए बी इज अ टॉवर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने लिया फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से है, P एंड Q है, ठीक है। PQ से मैंने लिया, तो डिस्टेंस 4 मीटर है एंड दूसरा है कितना, 9 मीटर है। एंड एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये देखा हुआ है ना, एक थीटा है तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखो। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको फाइंड करना है या फिर प्रूव करना है द हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया था, बस यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो बाकी बेसिक आइडिया वही है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन 4, राइट, एंड tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन 9, राइट है ना, बराबर है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद से करो। अभी हाँ, यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये तो पता है आपको, AB अपॉन 4 एंड tan थीटा कुछ नहीं, tan थीटा होता है AB अपॉन 9। अब इन दोनों को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है कॉन्सेप्ट, सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 36। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, कॉट इज 1 अपॉन tan, तो tan कैंसिल, या फिर साइन अपॉन कॉस एंड कॉस अपॉन साइन कैंसिल, 1 हो जाता है, तो 36 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो कितना हो गया, AB विल बी इक्वल टू 6 हो गया, दैट्स इट। जो हमें प्रूव करना था 6 मीटर हो गया डिस्टेंस, हाइट ऑफ द टॉवर, बराबर है ना। सो सिंपल, कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल, वही कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार हम लोग करेंगे और एक बार करेंगे। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट S
पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम द फूट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब वही है, मतलब अगर डिस्टेंस एस हो एंड डिस्टेंस टी हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, और हमें ये हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है एंड वो प्रूव करना है रादर रूट ऑफ एस टी, वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे दोनों मिसिंग है। ओके, एंगल में नहीं दिया एंड वैल्यूज भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन एस, एंड tan थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन टी। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एस, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन टी, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन एस टी, ये 1 हो गया, एस टी विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी क्या होगा, रूट ऑफ एस टी, हो गया, दैट्स इट। सो वेरी सिंपल, वही चीज़ें बार बार नहीं, हर बार। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। फाइन, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो इसको, ओके, खुद से सॉल्व करो। एंड मैं लेता हूँ और एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? तो वो अब मैंने लिया नहीं है, बाय मिस्टेक मिस कर दिया उसको, लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट फाइंड आउट दैट क्वेश्चन, वेयर इज इट। एक रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, आई एम जस्ट सर्चिंग दैट, कहीं ना कहीं होगा। नहीं दिख रहा, अदरवाइज आई जस्ट टेल यू, ओरली आई टेल यू इन केस इफ आई डोंट फाइंड इन दिस, होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट देयर। ये रहा 38th क्वेश्चन, वही मैं सोच रहा था कि व्हाई इट इज नॉट देयर, इट इज देयर, इट हैज टू बी। आई जस्ट टेक दैट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यहाँ से देता हूँ मैं। आई विल गो बैक टू आवर बोर्ड, हियर इज द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ गया आपको तो 100% ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको 1-2 बार देखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, ओके? ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये 100% बहुत बार रादर अभी तक मुझे लगता है कि 7-8 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं बोर्ड में, ओके? तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। द क्वेश्चन सेज दैट अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द सी लेवल। तो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि देयर इज अ सी, उसके ऊपर 10 मीटर पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ओके, यहाँ पे तो ए पॉइंट पे बैठा हुआ पर्सन है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द क्लाउड, क्लाउड है यहाँ पे, सी जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे क्लाउड है। उस क्लाउड को देखने के लिए उसको कितना एलिवेट करना पड़ रहा है, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मेजर करते हैं ना हम लोग, ठीक है? देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इनसाइड द सी। देखो रिफ्लेक्शन इस क्लाउड का, इस सी का रिफ्लेक्शन कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। इसी सी का रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे जाएगा, यहाँ पे होगा सी डैश, लेट्स कॉल सी डैश एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सी। तो उसका उसने डिप्रेशन देखा तो वो कितना था, 60 डिग्री। देखो कितना वियर्ड सा डायग्राम है ना, डायग्राम वियर्ड, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। कंप्लीट करते फटाफट, ओके?
तो अभी हम लोग बाकी चीज़ों को नाम देते हैं। यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे ए सी दिया, यहाँ पे एक एम पॉइंट दिया, अरे सी तो ऑलरेडी है, ओ देते थे, ओ। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ओ एम जो होगा वो भी 10 मीटर होगा, क्लियर है। लेकिन इज ओ एम अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स लेना पड़ेगा, तो सी ओ को एक्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर सी ओ एक्स है, ओ एम 10 है, तो सी एम कितना होगा? सी एम होगा 10 प्लस एक्स। और जितना रिफ्लेक्शन का रूल हमें पता है, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे अंदर भी होता है, राइट। दैट मीन्स सी एम विल बी इक्वल टू एम सी डैश, सी एम एंड एम सी डैश विल बी इक्वल। सी एम कितना है? 10 प्लस एक्स, सो एम सी डैश भी कितना होगा? 10 प्लस एक्स। तो एम सी डैश जो है वो होगा 10 प्लस एक्स। ये बात समझ में आ गई ना? मुझे जो साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स पता होने चाहिए थे वो सब कुछ भी मिल गया। नाउ आई कैन यूज माई सिंपल वे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। tan 30 ऊपर वाला ट्राइंगल, ओ सी ओ, ए सी ओ, एक्स अपॉन ए ओ। आई थिंक ए ओ इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई एंड आई कैन फाइंड दैट। सो 1/√3, तो ए ओ विल बी इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन इन ए ओ सी डैश, तो आई गेट tan ऑफ 60, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको आराम से करना पड़ेगा विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, इज इक्वल्स टू ओ सी डैश अपॉन ए ओ। पर्पज मैंने ओ सी डैश लिखा है, पूरी वैल्यू नहीं लिखी है, आप डिसाइड करो कि पूरी वैल्यू क्या होगी, ओ सी डैश। तो ये √3, ओ सी डैश विल बी 20 प्लस एक्स, 10 प्लस 10 प्लस एक्स, मतलब 20 प्लस एक्स होगा अपॉन ए ओ। तो व्हाट इज ए ओ इज इक्वल्स टू इन दिस केस 20 प्लस एक्स अपॉन √3। बाकी वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट डायग्राम एंड कुछ रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। इक्वेट कर दो, √3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, तो x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20, x विल बी 10 अगेन। है ना, x विल बी 10 अगेन। तो अगर x 10 है, मुझे पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द शिप, ओ ओ ओ ओ हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कितना होगा, मतलब सी एम इज हाइट ऑफ द क्लाउड, देयरफॉर सी एम विल बी इक्वल टू 10 प्लस 10, 20 हो जाएगा, ओके। एंड शिप से उसका डिस्टेंस, कहाँ से उसका डिस्टेंस चाहिए, शिप से, मतलब ए सी चाहिए। तो ए सी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ए सी चाहिए, ए सी इज डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू द क्लाउड, है ना। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं साइन से कर सकते हैं या फिर कॉस से कर सकते हैं। साइन से करेंगे, साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए सी, 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स दैट इज 10 अपॉन ए सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू 20 अगेन, दैट्स इट। कितना सिंपल है देखो क्वेश्चन, बाकी सॉल्व करना बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ईजीली सॉल्व दिस, ईजीली कंप्लीट इट। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन मैंने लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन आई कुडंट टेक इट, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन इट वंस। आपको उसका स्पीड फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फाइंड करो, उसके बाद यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ इट, ओके, गॉट इट, hope you understood, hope it is clear, the topic is done, so I declare the topic is done right here. If you have got any other doubt, like textbook में ये question है, वो मैंने I made it sure that all the type of questions which are there in the textbook and as well as some extra question also I have covered, but still अगर आपको ऐसे लगता है कि textbook में ये question था वो हमें नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, you can please tell me, okay. So I request you to solve all these 46 questions which I gave you in the PDF, all the 46 questions. So see that these 46 questions are complete at any cost, and the marks of this particular topic, around about 7 to 8 marks are there in this, for this particular topic. Those all 8 marks will be there in your pocket.
ओके, जस्ट ये 46 क्वेश्चन करो, 8 मार्क आपके हो गए, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, 100% कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आपका ये टॉपिक क्लियर एंड आउट। बाय बाय, सी यू टुमारो।